على كل ما يجب نسيم الماء على قوله والفتح ساعة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ چل رہا تھا کہ حنفیہ کے یہاں حقیقت اور مجاز کو ایک ساتھ مراد لینا درست نہیں ہے۔ ایک ہی لفظ سے حقیقت بھی مراد ہو اور مجاز بھی مراد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی کہتے ہیں جمع بین الحقیقہ والمجاز۔ حقیقت و مجاز کے درمیان جمع کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ مثالیں ایسی ہیں جن میں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حقیقت و مجاز کے درمیان جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہے بمن حلف لا یسکن دار زید، اور اعتراض کیا گیا ہے اس سے جو قسم کھا لے کہ وہ زید کے گھر میں نہیں رہے گا۔ نسبت عام ہے، چاہے وہ زید کی ملکیت ہو یا ملکیت نہ ہو۔ وَبِأَنَّ أَبَا حنیفہ و محمد قالا، اور اعتراض کیا گیا اس سے بھی کہ امام ابو حنیفہ اور محمد کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے للہ علیہ صوم رجب ناویاً للیمین، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے رجب کا روزہ ہے، قسم کے ارادے سے، کہ وہ قسم بھی ہے اور نظر بھی ہے۔ نظروں و یمین دو چیزیں ہو جائیں گی، نظر بھی اور یمین بھی، تو ایک ہی لفظ سے دو چیزوں کو مراد لے رہے ہیں آپ، نظر کو بھی اور یمین کو بھی۔ وہ اجیب بالکل اوپر سے دیکھیے، اوصال ابناء زید کیا ہے؟ بالمستعمل علی ابنائه لدخول الحفدہ، اس کا جواب۔ وہ اجیب، پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امان یہ خون کی حفاظت کے لیے ہے، المحتاط فیہ جس میں احتیاط کا تقاضا ہے۔ خون کے معاملے میں کیا کریں آپ؟ احتیاط کریں۔ اس احتیاط کے پیش نظر ابنا سے حفدہ کو مراد لیا گیا ہے، پوتوں کو مراد لیا گیا ہے۔ فانتہز الاطلاق شبہتن، اس اطلاق نے ایک شبہہ پیدا کر دیا ہے جو اس میں حقیقت کے قائم مقام ہے۔ کیا ہے؟ تو حفدہ بھی کیا ہے؟ حقیقت کے قائم مقام ہے، چونکہ خون کے معاملے میں احتیاط سے کام لیا جاتا ہے، اس لیے شبہ کو بھی عمل دلا دیا جاتا ہے، اور بیٹے کے اندر پوتے کو بھی داخل کر لیا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کا جواب، قدم کا رکھنا یہ مجاز ہے دخول سے۔ کیا ہے؟ تو یہ مجازی معنی مراد ہے، مراد کیا ہے؟ دخول۔ اس وجہ سے اسے عام کر دیا گیا ہے، فَأُمَّہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ عام ہو گیا ہے۔ اب دخول چاہے جیسے بھی ہو، قدم کے ذریعے ہو، چاہے چارپائی پہ ہو، چاہے کیسے بھی ہو، وضع قدم یہ دخول سے مجاز ہے، لہذا اسے عام کر دیا گیا ہے۔ والیوم دن، اگر ایسے فعل کے ساتھ ہو جو دراز نہ ہو، لا یمتد، کانا لمطلق الوقت، ضابطہ بتایا گیا تھا کل، مطلق وقت کے لیے ہوگا۔ یوم کی اضافت ایسے فعل کی طرف ہو جو ممتد نہ ہو تو مطلق وقت کے لیے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس دن پشت پھیر لے، یوم ایذن، تو تولی کیا ہے؟ پشت پھیرنا، اس میں بھی امتداد نہیں پایا جاتا ہے، درازی نہیں پائی جاتی ہے، ایک آن کے لیے ہوتا ہے، پشت پھیر لیا بھاگ گئے آپ، جیسے ہی پشت پھیر کے بھاگے آپ نے، یہ لفظ اس پہ صادق آ گیا۔ ولی نہار، اور دن سے نہار مراد یوم سے نہار مراد ہوتا ہے، اذا امتد، جبکہ وہ کیا ہو؟ فعل دراز ہو، اس لیے کہ اب یہ اس کے لیے معیار بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ معیار، اسی دن میں اس کام کو انجام دینا ہوتا ہے۔
वल गैर मुमतद, आना गैर मुमतद है, लिहाजा मुतलक वक्त का एतबार किया गया है। जैद का घर, मैं जैद के घर में नहीं रहूंगा, हमने बतलाया था आपको। मुराद क्या है? जैद के साथ नहीं रहूंगा। दुश्मनी किससे है? जैद से। घर से किसी क्या दुश्मनी होगी? इधर और दीवार से, ईंट पत्थर से। दुश्मनी किससे होती है? जैद से, शख्स से, इंसान से। उसी पर आदमी कसम खाता है। तो जैद के घर में नहीं रहूंगा मतलब क्या है? जहां जैद रहेगा वहां नहीं रहूंगा। तो चाहे वो मिल्कियत के घर में रहे, चाहे किराए के घर में रहे। और इजाफतुद्दार, और दार की इजाफत, ये रिहाइश के लिए है। किसके लिए है? लिस्सुकना। क्या कहा? ला यस्कुनु दार। और दार की इजाफत निस्बतुल लिस्सुकना, ये सुकना की तरफ निस्बत है। और ये आम है, चाहे मिल्कियत हो चाहे गैर मिल्कियत हो। आखिरी एतराज था, लिल्लाहि अलैहि सौम रजब। तो नजर भी है और यमीन भी है। नजर भी है और यमीन भी है। कुरान में कहा गया है कि अगर कोई शख्स मुबाह को अपने ऊपर हराम कर ले तो ये यमीन है। नहीं, मुबाह को अपने ऊपर हराम कर ले तो ये क्या है? यमीन है। पढ़िए वो सूरह तहरीम। लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक कद फरदल्लाहु तहिल्लत ऐबानिकुम। अल्लाह के रसूल ने क्या किया था? एक मुबाह को अपने लिए हराम कर लिया था। और कुरान ने इस अमल को यमीन कहा है। तो मुबाह को अपने ऊपर हराम कर लेना क्या है? यमीन है। इसके मुखालिफ पे भी चलिए। मुबाह को अपने जिम्मे फर्ज कर लेना भी यमीन है। जैसे हराम कर लेना क्या है? यमीन है। ऐसे ही अपने ऊपर वाजिब कर लेना भी क्या है? यमीन है। तो ये यमीन समझा जा रहा है इस तरह से, और नजर समझा जा रहा है सेगे से। लिल्लाही अलैया, ये क्या है? सेगा किसका है? नजर का है। तो सेगे से समझा जा रहा है नजर को, और इस जाब्ते से समझा जा रहा है यमीन को। तो जब अलग अलग चीजों से दो चीजें मुराद हैं तो जमा करना कहाँ पाया गया? वन नजर मुस्तफाद बिन सेगा, नजर मालूम हो रहा है सेगा से, और यमीन मालूम हो रहा है इसके तकाजे से। किससे? तकाजे। उसकी वजाहत कर रहे हैं इसलिए कि मुबाह को वाजिब कर लेना यमीन है, जैसे कि मुबाह को हराम कर लेना यमीन है। बिन नस, नस के जरिए, वही पुरानी आयत जिसका मैंने हवाला दिया। वमाल Itu इख्तलाफ ला kako, जमा। mana kana, और nai जब mamu mana, इख्तलाफ पाया जाए तो फिर जमा करना apa नहीं है। kana, एक लफ्ज से हम जमा kada, नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या है? अलग अलग चीजें हैं जिसके जरिए से जमा किया जा रहा है। कजा फिल बजाए, जैसे कि बजाए में है। इसी ज़ाब्ते के मुताबिक है, लव हलफ अला युसल्ली सलातन, कसम खा ले कि वो कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। युसल्ली के साथ क्या है? सलात। तो वह हानिस नहीं होगा मगर 2 रकत के पढ़ने से। किससे? 2 रकत। सलात क्या है? 2 रकत। बरखिला, इसलिए कि यही हकीकी मफहूम है बरखिलाफ ला युसल्ली के, क्योंकि हानिस नहीं होगा यहां तक कि उसको मुकय्यद कर दे सजदे से। इसलिए कि ऐसी सूरत में वो तमाम अरकान को अदा करने वाला हो जाएगा। यानी 1 रकत, ला युसल्ली, 1 रकत। यानी अरबी के एतबार से क्या है? वो सलात है। 1 रकत क्या है? मुकम्मल नमाज है। नमाज के तमाम अरकान 1 रकत में पा लिए जाते हैं। वह हल यह
या यहनसु बेवदिल जबहा, क्या वह हानिस होगा पेशानी के रखने से या पेशानी के उठाने से। दो कौल हैं बगैर किसी तरजीह के। आपने पढ़ा इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं उठाने से, वहां अबू यूसुफ कहते हैं रखने से। वह यंबगी तरजीह सानी, और मुनासिब है कि दूसरे को तरजीह दी जाए, यानी इमाम मोहम्मद के कौल को, जैसा कि फुकहा ने इमाम मोहम्मद के कौल को तरजीह दी है नमाज के मसले में। वलव हलफ फला युसल्ली ज़ोहर, कसम खा ले कि जोहर की नमाज नहीं पढ़ेगा, हानिस नहीं होगा मगर 4 रकत के पढ़ने से। जोहर की नमाज असल क्या है, 4 रकत है। वलव हलफ फला युसल्ली ही जमा, अगर कसम खा ले कि वो जोहर की नमाज जमात से नहीं पढ़ेगा तो हानिस नहीं होगा 1 रकत के पा लेने की वजह से। यानी हकीकत के एतबार से 1 रकत जमात नहीं है, अगरचे सवाब के एतबार से 1 रकत भी क्या है, जमात है, जमात का सवाब मिल जाएगा। फुकहा का इख्तलाफ है, जब वो ले आए अक्सर को, यानी 3 रकत पाले, 1 रकत छूट जाए, तो क्या हकीकतन उसकी जमात मिली या जमात नहीं मिली। जाहिर एक जमात उस वक्त मिलेगी जबकि शुरू शुरू से लेकर के आखिर तक रहे, तब जमात होगी लगत के एतबार से, हकीकत के एतबार से। खात्मा, इसमें कुछ फवायद हैं, यानी अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक से मुताल्लिक है। अल-फायदा अल-ऊला, पहला फायदा, अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक से कुछ मसाइल मुस्तस्ना है, यानी शक पे अमल किया जाता है। क्या किया जाता है, शक की वजह से यकीन जायल हो जाता है, शक पे अमल किया जाता है। मुस्तहाजा मुतहय्यरा, तो वो औरत जो अपने इस्तिहाजा के सिलसिले में हैरान हो, यानी एक तो है हैज, तो हैज के साथ मुसलसल खून आने लगा है उसे, उसे क्या कहते हैं, मुस्तहाजा। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि उसका हैज महीने के शुरू में आता था कि बीच में आता था कि आखिर में आता था। ये मुतहय्यरा बिस जमान। अच्छा, वो 3 दिन आता था कि 10 दिन आता था, कितना आता था ये भी नहीं मालूम। ये क्या, मुतहय्यरा बिल अदद, तादाद भी नहीं मालूम। तो इस तरह की औरत क्या कहलाएगी, मुतहय्यरा। हैरान है कि शुरू में आता था, बीच में आता था, कब आता था। अब जाहिर है कि जब आए उसके बारे में उसे यह है कि उसका हैज जो है वो आ गया कि उसका हैज खत्म हो गया। दुखूल हैज खुरूज अनिल हैज, गुस्ल का सबब क्या है, खुरूज अनिल हैज, हैज से खारिज हो जाना, यह गुस्ल का सबब है। हर दिन के बारे में एहतमाल है कि वह हैज से फारिग हो गई, लिहाजा वो क्या करेगी, गुस्ल करेगी। क्या करेगी, गुस्ल करेगी। जाहिर है कि बड़ी दुश्वारी में फंस जाएगी वो तो। क्या हो जाएगी, बड़ी दुश्वारी में फंस जाएगी। हर नमाज के वक्त 5 वक्त गुस्ल करना, चलिए गर्मी में काम चल जाएगा, जाड़े में कैसे काम चलेगा। हाँ, अभी उसके बाल ही खुश्क नहीं हुए होंगे जब तक कि क्या है, दोबारा गुस्ल करना होगा उसे। नहीं, अभी एक वक्त का बाल नहीं खुश्क हुआ होगा दोबारा तो बीमार पड़ जाएगी। इसलिए आप पढ़ेंगे कि जैसे इमाम शाफी वगैरह के यहाँ तमीज बिद्दम है। क्या है, तमीज बिद्दम, खून के जरिए इम्तियाज करना। हदीस में कहा गया है इसका खून काला होता है, पहचान लिया जाता है इसका क्या होता है, काला होता है और पहचान लिया जाता है। अगर कोई हैज के खून के जरिए से फर्क कर ले कि यह हैज का है कि इस्तेहाजा का है, और कोई हनफी मुफ्ती इस दुश्वारी के पेश नजर फतवा दे दे तो उसकी गुंजाइश है। चलिए पढ़ेंगे, इसी मिसाल पर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुस्तहादा मुतहय्यर, उसे लाजिम है गुस्ल करना हर नमाज के लिए, यही सही है। दूसरा है मसला है कि जब किसी को तरी महसूस हो और मालूम नहीं है कि वो मनी है कि मजी है। हम पहले बयान कर चुके हैं कि गुस्ल वाजिब है शक के पाए जाने के बावजूद। क्या है, शक। आपको क्या करना चाहिए, मजी मान लीजिए, गुस्ल वाजिब मत कीजिए। लेकिन क्या करते हैं, शक है कि मनी है इसलिए क्या है, गुस्ल वाजिब है, यानी शक पर अमल किया जा रहा है।
तीसरा मसला है, ये भी पढ़ चुके हैं, चूहा पाया या चूहिया को पाया, ये मालूम नहीं है कब वो गिर गई थी और उस पानी से वजू कर चुका है। हम बयान कर चुके हैं कि उसके जिम्मे नमाज को लौटाना है तफसील के साथ। हालांकि ये भी क्या है, शक के साथ। किसको अमल दिलाना है? शक को अमल दिलाना है। अर्राबिया, चौथा मसला हम ये बयान कर चुके हैं कि शक हो जाए कि क्या उसने अल्लाह अकबर कहा है तकबीर तहरीमा के लिए या नहीं कहा है, या उसे हदस हुआ है या नहीं हुआ है, अपने सर का मस्सा किया है या नहीं मस्सा किया है, और ये जिंदगी में पहली मर्तबा ये मामला पेश आया है, इस्तकबला फिर से कर ले। यहाँ पे क्या है? शक को अमल दिलाना। पांचवा मसला है, कपड़े पे नजासत लग जाए, मालूम नहीं है कि नजासत की कौन सी जगह है, पूरे को धुले। जैसा कि हम ज़ाहिरिया के हवाले से बयान कर चुके हैं, बावजूद है कि इस मसले में इख्तलाफ है। कुछ लोग क्या कहते हैं, एक किनारे को धो दे काफी है। छठा मसला है, रमा सईदन, शिकार पे तीर चलाया, जख्मी कर दिया, फिर वो उसकी निगाह से गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया, ये तला भाग गया, दूर चला गया। तुम वजदहु मय्यतन, शिकारी ने उसे मुर्दार पाया और उसकी मौत का सबब मालूम नहीं है, तो हराम है शक के वजूद के साथ, मौजूद शक। यानी क्या हो गया, अब मान लें कि तीर की वजह से मरा है, या दूसरे जानवर ने देखा कि उसने भगोड़ दिया है, या कहीं वो गिरने की वजह से चल रहा था, गिर गया, गिरने की वजह से मर गया। बहुत सी चीजें क्या हैं, असबाब हो सकते हैं इसके मरने के। तो ये हराम है शक के वजूद के साथ। लेकिन कंज में उसके हराम होने के लिए शर्त लगाई है कि वो उसकी तलाश से बैठ रहे। क्या रहे? हाँ, तलाश करना छोड़ दे, उसके बाद कहीं मिल जाए देखे मुर्दा तो खाना हराम है। लेकिन तलाश करता रहा, तलाश करते करते मुर्दा हालत में पा गया, तो वह हलाल है। काजी खान ने ये शर्त लगाई है कि वो उसकी निगाह से छुप जाए, और इसी की तरफ हिदाया में भी इशारा मौजूद है, लेकिन मोहतमद अव्वल है। सही है कि काजी खान के यहाँ और हिदाया के यहाँ कुछ नहीं, सब पहले कौल पे मुत्तफिक है। क्या है? जो कंज वाला अयकुदा अन तलबिही, उसके तलब से वो क्या रहे, बैठ रहे, तभी हराम है। निगाह से छुप जाना ये हुर्मत का सबब नहीं है, वरना तो आदमी दुश्वारी में मुब्तला हो जाएगा। अस्साबिया, सातवां मसला है, अगर बिल्ली चूहा खा ले, फुकहा ने कहा है कि अगर फौरन पानी पी ले तो नापाक हो जाएगा पानी। जैसे कि शराब पीने वाले का यही मसला है, जब फौरन वो पानी पी ले तो पानी नापाक हो जाएगा। यानी मुंह लगा के घड़े में पानी पी ले, क्या कर ले, या आजकल बाटल आता है, बाटल में मुंह लगा के पानी पी ले, तो बाटल में जो मौजूद बकिया पानी हो क्या हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। वलो मकसद सातन, अगर बिल्ली थोड़ी देर ठहरी रही, तुम शरीबत, उसके बाद पानी पिए, तो पानी नापाक नहीं होगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक। इस बात के एहतमाल की वजह से कि उसने अपने मुंह को धुल लिया हो अपने लुआब के जरिए। उसके जरिए यानी बिल्ली की आदत होती है खाने के बाद क्या करती है, जबान निकाल निकाल करके चाट लेती है उसे। तो लुआब भी क्या है, मुतहिर है। बता चुके हम तफसील से आपको इस मसले को। तो लुआब भी क्या है, मुतहिर है, पाक करने का एक जरिया है। वह इंद मोहम्मद, और इमाम मोहम्मद के नजदीक पानी नापाक हो जाएगा, बिना करते हुए अपने जाब्ते पर कि नजासत हकीकी भी जायल नहीं होती है मगर मुतलक पानी से। जैसे कि नजासत हुक्मिया का यही हुक्म है, कल हुक्मिया। तो नजासत हुक्मिया के लिए तो सबके नजदीक क्या है, माए मुतलक जरूरी है। यानी गुस्ल और वजू के लिए क्या जरूरी है, माए मुतलक। पेट्रोल से गुस्ल और वजू नहीं कर सकते हैं, क्या जरूरी है, माए मुतलक। लेकिन नजासत हकीकी के लिए कोई भी लिक्विड हो, क्या हो, मुजील हो, काले हो, हाँ ये पढ़ना पे, कोई भी क्या हो, माए हो, और क्या हो, मुजील हो, काले लिन नजासा, नजासत को क्या करने वाला हो, जायल करने वाला हो,
उसके जरिए से आप नजासत को जाहिल कर सकते हैं। हमने कहा कि उसी में से क्या है, ये लुआब भी है। हमारे अल मुतहरात कसीरा, पाक करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। वह हुना मसाइल तहताज इलल मुराजा, यहाँ कुछ मसाइल हैं जिनके लिए किताबों से रुजू की जरूरत है। लम अरहल आन, मैंने अभी तक देखा नहीं है, ज़ाब्ते के मुताबिक हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हल करने के बाद कह रहे हैं मुझे मसला फला जगह मिल गया। पहले ही क्यों नहीं लिख दिया भैया कि पहले मिल गया? लिख दिए होते, काट दिए होते। हाँ, नहीं। लेकिन बहरकैफ एक तरीका है कि पहले हमने क्या किया है, इसको हल किया है ज़ाब्ते के मुताबिक, और ज़ाब्ते के मुताबिक फिर हमें सराहत मिल गई है। यानी आपके लिए भी आसानी है कि आप भी मसला क्या कीजिए, ज़ाब्ते के मुताबिक हल कीजिए। लम अरहल आन, मैंने अभी तक देखा नहीं है। उनमें से पहला मसला है शक का मुसाफिर, मुसाफिर को शक हो गया है वसल बलदहु औला, कि वो अपने शहर में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उसके शहर के हुदूद शुरू हो गए हैं या हुदूद शुरू नहीं हो गए हैं। ट्रेन वगैरह से जरा सा शक होता है, खासतौर से रात में सफर करें, पता नहीं चलता है कि हमारे हुदूद आ गए हैं कि हुदूद नहीं आए हैं। अब तो जो है शहर के हुदूद क्या है, कहीं कहीं 100-100 किलोमीटर है। तो मुसाफिर को शक हो गया कि वो अपने शहर में पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसी में से है कि मुसाफिर को शक हो गया कि क्या उसने इकामत की नीयत की है या इकामत की नीयत नहीं की है। यानी नियत करके भूल गया है कि उसने इकामत की नियत की थी कि या नहीं की थी, या कि वो ताबे है, क्या है, ताबे है, और उसे शक है कि मतबू ने इकामत की नियत की है या इकामत की नियत नहीं की है। बीवी शौहर के ताबे है, गुलाम आका के ताबे है, कैदी जो है जो कैद करके ले जा रहा है उसके ताबे है। तो इन सब के लिए जरूरत होती है किसकी, मतबू की नियत की। वयंबगी अल्ला यजूज लहु तरख्खुस बिशक, मुनासिब यह है कि शक की वजह से उसके लिए रुखसत जायज न हो। यानी अगर आप नमाज पढ़ना चाहते हैं पूरी नमाज पढ़िए। आपको शक है कि अपने शहर में पहुंच गए कि नहीं पहुंचे, क्या कीजिए आप, पूरी नमाज पढ़िए। शक है कि इकामत की नियत की है या नहीं की है, तो क्या कीजिए आप, पूरी नमाज पढ़िए। सुम्मा रअयतु फित ततार खानिया, फिर मैंने इस मसले को ततार खानिया में देख लिया है। चुनांचे लिखा है वलौ शक्का फी सलात मुकीमुन औ मुसाफिरुन, अगर मुकीम या मुसाफिर को नमाज में शक हो जाए, सल्ला अरबान, तो वो 4 रकत नमाज पढ़ेगा और दूसरी रकत पर बैठेगा एहतियातन। यानी बैठना तो वाजिब है, कायदा उला वाजिब है, लेकिन यहाँ बतौर फर्ज दूसरी रकत पे बैठेगा। हो सकता है कि वो क्या हो, मुसाफिर हो, और मुसाफिर के लिए दूसरी रकत का कायदा कायदा अखीरा है। फ़कज़ालिक इज़ा शक्क फ़ी नियतिल इक़ामा, लिहाजा यही मसला है जब उसे इक़ामत की नियत में शक हो जाए। वमिनहा साहिबुल उज़्र, इसी में से है साहिब उज़्र, जब उसे उज़्र के खत्म होने के बारे में शक हो जाए। आ उज़्र समझते हैं, जैसे यही ये इस्तिहाजा की बीमारी है, क्या है, मुसलसल खून आता रहता है। इसके लिए हुक्म यह है कि हर नमाज के लिए वजू करे। क्या करे, हर नमाज के लिए वजू करे। अगरचे नाक़िज़े वजू पेश आ रहा है वजू करते हुए, वजू के बाद भी, लेकिन उसका वजू नहीं टूटेगा। कब तक, जब तक कि वक्त है, जब तक कि क्या है, वक्त है। तो हर नमाज के वक्त के लिए माजूर क्या करेगा, वजू करेगा। या किसी को जो है पेशाब के टपकने की बीमारी है, या किसी को हवा खारिज होने की बीमारी है, ये सब क्या है, आजार हैं। क्या है, आजार हैं। वजू किया उसने उज्र की हालत में, वजू के बाद उसे शक हो गया कि शायद मेरा उज्र खत्म हो गया है,
2-4 मिनट तो हो गए लेकिन अभी तक हवा खारिज नहीं हुई है, इसका मतलब कि मेरी बीमारी क्या हो गई है, जायल हो गई। फिर भी उसी वजू से नमाज पढ़ ले रहा है तो उसकी नमाज नहीं होगी। उससे अब क्या करना चाहिए, दोबारा वजू करे। मिनहा साहिबुल उज्र, इसी में से है साहिब उज्र, जब उसे उसके खत्म होने के बारे में शक हो, फसल्ला बेतहारत ही, उज्र वाली तहारत से नमाज पढ़ ले। मुनासिब यह है कि उसकी नमाज सही न हो। वमिनहा जा मिन कुद्दामिल इमाम, इमाम के आगे से आया और शक हो गया कि क्या वो इमाम से आगे तो नहीं बढ़ गया था। इमाम से आगे से की तरफ से आया, पहले ही नियत करके खड़ा हो गया, पहले नियत करके क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब उसे शक हो गया है कि जिस वक्त मैंने नियत बांधी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इमाम से आगे था। इमाम से आगे बढ़ करके नियत बांधेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। जाहिर है कि मसला कब पेश आएगा, जब इमाम साहब कि आगे की तरफ से सेहरा में या मस्जिद में सामने से दरवाजा हो, उस तरफ से आए और क्या कर ले, पहले ही आकर के सबसे पहले क्या कर ले, वो नियत बांध ले। अब उसे शक हो रहा है। या मिन कुद्दामिल इमाम, इमाम के आगे से आया और फिर शक हो गया कि क्या वो इमाम से आगे तो नहीं बढ़ा था। फमिन हा शक का, शक हो गया कि क्या उसने इमाम से पहले तकबीर कह दी है या नहीं। ने अल्लाह अकबर कह दिया इमाम से पहले ही, इमाम साहब अभी सफे दुरुस्त करा रहे थे, उससे पहले ये क्या कह गया, अल्लाह अकबर कह गया। हाँ? नहीं होता है, कुछ लोग क्या कर लेते हैं, कहीं घूम रहे होते हैं, खड़े हुए, बल्कि अभी इकामत हो रही है, ओके, खुशू खुदू की हालत में आ जाते हैं। क्या आती, तुम भी इसी करते हो? हाँ, हाँ मैं यही कह रहा था, तुम भी घूमते रहते हो ना, तुम्हारा भी दिमाग इधर उधर टहलता रहता है, हर वक्त सोचते रहते हो। हाँ, 4 पैसा कैसे मिलेगा, 4 पैसे के चक्कर में रहते हो तुम खाली। तो शक हो गया कि क्या उसने इमाम से पहले तकबीर कह दी है या नहीं। फिर मैंने इस मसले को भी ततार खानिया में देख लिया है। मसला यह है कि जब मुक्तदी को मालूम ना हो कि क्या वो इमाम से तकबीर में आगे बढ़ गया है या नहीं, अगर जन्ने गालिब ये हो कि उसने तकबीर कहा है, तकबीर कही है इमाम के बाद, अज्जा हो, जन्ने गालिब पर अमल किया जाएगा। और अगर जन्ने गालिब ये है कि उसने तकबीर कही है इमाम से पहले, तो जायज नहीं है। और अगर दोनों जन बराबर हो, न इधर न उधर, तब भी सही है, इसलिए कि उसका मामला महमूल है दुरुस्तगी पर। यानी आमतौर पे क्या है, लोग इमाम के बाद ही तकबीर कहते हैं, इमाम से पीछे हट करके ही क्या कहते हैं, इक्तदा करते हैं, यहां तक कि गलती वाज़ेह हो जाए, बात खत्म हो गई। मुनासिब है कि इसी तरह से उस मसले का हुक्म हो जो इससे पहले है, और वो है तकद्दुम और तअखुर में शक। यानी जन्ने गालिब यह है कि इमाम से आगे उसने नियत बांध ली है तो नमाज नहीं होगी। जन्ने गालिब यह है कि नहीं, इमाम के पीछे होकर के नियत बांधी है तो नमाज हो जाएगी। अगर दोनों जन बराबर हैं तब भी नमाज हो जाएगी, इसलिए कि आमतौर पर लोग इमाम से पीछे आकर के ही नियत बांधते हैं। और मिनहा मन अलैहि फाइता, किसी पे छूटी हुई नमाज है, व शक फी कज़ाहा, और शक हो गया है उसकी कज़ा के बारे में, तो ये कुल 6 मसले हो गए। क्या हो गए, 6 मसले हो गए। लम अरहल आन, लम अरहल आन वाला, जिसे मैंने देखा नहीं था, फिर किसी को क्या कर लिया है, देख लिया है, तो ये कुल 6 मसले हो गए। वाफी ततार खानिया, ततार खानिया में एक मसला लिखा है कि एक आदमी को ये मालूम नहीं है कि क्या उसके जिम्मे टूटी हुई नमाजों की कज़ा है या नहीं है, तो उसके लिए मकरूह है
कि वो छूटी हुई नमाजों की नियत करे, छूटी हुई नमाजों की नियत करे। इसलिए कि जाहिर है कि जब क्लियर नहीं है तो महज शक की वजह से नमाज का इआदा नहीं किया जाएगा। नमाज 2 मरतबा नहीं पढ़ी जा सकती है। सुम्मा क़ाल, फिर कहा कि अगर कोई आदमी किसी आदमी को मालूम न हो कि क्या उसके जिम्मे फवायद में से कुछ रह गई हैं या नहीं रह गई हैं, तो अफजल यह है कि सुन्नत ज़ोहर, असर और इशा में चारों रकत में सूरह फातिहा और सूरा पढ़े। चारों रकत में क्या पढ़े? सूरह फातिहा और सूरा पढ़े। यानी सुन्नत पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? सुन्नत पढ़ रहा है, लेकिन ये सुन्नत बनियत कज़ा भी है। क्या है? 2 in 1, 2 in 1। हाँ, तो सुन्नत है और कज़ा की नियत है। तो कज़ा की नियत है, सुन्नत क्या उसके ताबे। चलिए भाई, अगर कज़ा है तो कज़ा, वरना सुन्नत। अगर कज़ा है तो जाहिर है कि आखिर की 2 रकातों में सिर्फ सूरह फातिहा है, और अगर सुन्नत है तो आखिर की रकत में सूरह फातिहा भी है और सूरह भी है। इसीलिए एहतियातन क्या करेगा वो? सुन्नत समझ करके आखिर की 2 रकातों में सूरह फातिहा भी पढ़ेगा और सूरह भी मिलाएगा। हाँ जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए भी मुनासिब है, अगर वक्त नहीं है उसके लिए पास, तो क्या करे? सुन्नतों की जगह पे कज़ा पढ़े। सुन्नतों की जगह पे, इसलिए कि सुन्नतों से अहम क्या है? कज़ा। फायदा सानिया हो गया।